बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। My dear students, you are warmly welcome here in your fourth semester of your degree in the online system of the University of Education. Very dear students, I am here Dr. Muhammad Javed Aftab, working as a lecturer in the field of special education, University of the Education, Faisalabad campus. My dear students, I will be your teacher for the course of Curriculum Adaptation for Special Needs. My dear students, this is our first lecture of this course, Curriculum Adaptation for Special Needs. And our lecture will be around to the introduction of the curriculum. So, first of all, my dear students, no doubt curriculum has have a really vital role around all the programs of the study, and this is the basic strength of the any educational system. Uh, so no, and it's getting also very important why whenever we have to work and we have to talk about the uh, education for the children of special needs. Let us first of all we have to discuss about the definitions of the curriculum. The first definition is I have put more than one definition here. The reason is there is no specific definition for the curriculum, and different educationists uh, define the education in their own way. Uh, Many people have their own definitions. You can say different people have a defined curriculum in their own perspective. I have mentioned 5 to 6 definitions here and also attach a one handout of the 40 definitions for your in-depth understanding regarding the curriculum. So let's come on. Let we have to discuss about the first definition. Number one, the curriculum basically it's very difficult really. We can provide a single one answer to what is the curriculum. Basically, curriculum is the collection of the activities what the school is going to taught or the school is going to plan to the taught to the student, taught to the child, taught to the learner. In this first definition, the writer trying to clarify the curriculum, and the words are the curriculum may be both of the types, written and the unwritten. Later on, we will discuss this thing, written and unwritten and hidden curriculum in the next lecture number 2. That will be contained on the types of the curriculum. But here just we have to get know about what is the curriculum. The essentially curriculum is what the school is attempting to teach. Whatever the school have a plan to teach a child, a learner, and to guide the people. I mean the student, which might include social behaviors as well as the content and thinking skills. The curriculum is not contain only the things, the behavior, but also are taught the what the social behaviors and what type of the content will be and how the student will think and what will be the sort of the line of action for thinking. All the things will be contained in the curriculum as per this definition. The second one is
a course of study that will enable the learner to acquire specific knowledge and skills. Basically, the word curriculum making the child uh, making the child enable what the child should have to learn regarding the specific area of knowledge. This definition is valid mostly whenever you are going to the specialization. Like the one person is, we need our child should be a doctor in future, should be an engineer in future, should be a psychologist in future, should be a statistician in future. So we have to think in those lines. Okay, this is a course of study, a collection of the areas which tell us the what the student will be learn in the specific area of study. And the number third is a curriculum consists of the roadmap or guidelines of any given discipline. Both the philosophy of teaching of the instructor as well as of the educational institution serve as two of the principles upon which the curriculum is based. So, the number four is the curriculum is basically the combination of instructional practices, learning experiences, and student performance assessment. बेसिकली आपका जो करिकुलम है वो ना सिर्फ आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आपने बच्चे को क्या सिखाना है, इसके साथ साथ आपको वो तमाम गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपके पास इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप पढ़ाएंगे किस तरह से, टीचिंग का वे आउट क्या होगा, बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, और स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से जो है वो इवेल्युएट किया जाएगा, और उसके नतीजे में कि हमारे पास जो है वो उसके आउटकम्स क्या होंगे, और उसके जो टारगेट लर्निंग आउटकम्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया के जो उसको पढ़ाया जा रहा होगा और जिस तरह से पढ़ाया जा रहा होगा उसको हम जो है वो किस तरह से देखेंगे. And also it is the plan of instructions, plan of learning, uh, and a plan of action whatever the student will be learned by the policy makers. हम ये कह सकते हैं कि करिकुलम जहाँ पर हमें ये बताता है कि स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, कब जो है वो क्या लर्न करेगा, किस तरह से लर्न करेगा, कैसे लर्न करेगा, और कहाँ पर लर्न करेगा, उसके लर्निंग के तरीके क्या होंगे, वहाँ पर वो ये सारी बातें जो कि एक जो एक्सपर्ट्स हैं उसको इनलाइन करते हैं, उसको इनलिस्ट करते हैं और उसको जो है वो सजेस्ट करते हैं एक लर्निंग के लिए, उसको करिकुलम कहा जाता है. और उसके बाद ये भी है कि एक हमारे पास फिर ये भी हमने देखना है कि करिकुलम जहाँ पर उस गाइडलाइन का नाम है कि हमारे पास बच्चा क्या क्या लर्न करेगा, किस तरह से लर्न करेगा, और फिर वो कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, और उस इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो एजुकेशन है उसको डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर कैटेगराइज कैसे किया जाएगा, और उसमें कोर्सेज कौन कौन से होंगे. तो और हमारे पास स्पेसिफिकली हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि किस क्लास के लिए हमें जो है वो कौन से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स चाहिए होंगे. क्लास 1 है तो उसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, 2 में क्या डिफरेंस रखेंगे, और 3 में क्या होगा, और 4 में क्या होगा, 5th में क्या होगा. नो डाउट ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के साथ रिलेट करता है, बट जब हम करिकुलम बनाएंगे तो हम प्लान करेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट क्लासेस है उसकी हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से कैटेगराइज करेंगे. My dear students, as I already said that curriculum playing a very important role in attaining the objectives, specifically educational objectives, and help in achieving the objectives. और करिकुलम जो हमारे पास है ये हमें बताता है कि आपके पास
जो को करिकुलर और को करिकुलर जो हमारे पास एक्टिविटीज़ होंगी वो हमारे पास जो है वो इस तरह से होंगी। कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे पास अ, होंगी और किस तरह से हम उन्हें प्ले करेंगे और वो किस तरह से हमारी एजुकेशन का जो है वो हिस्सा बनेंगे। बट इसमें सम टाइम में भी हम ये कह सकते हैं कि the curriculum may be tightly standardized sometime and may include a high level of instructor or learning autonomy. इसमें हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट है और डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है उसको डिफरेंट तरह से जो है वो डिसाइड किया जाता है। Curriculum, we can say the curriculum may incorporate the planned interaction of pupils with instructional content as well as material, resources, and processes for evaluating the attainment of educational objectives. Uh, Curriculum is split into several categories like हम कहते हैं कि the split, the implicit, the excluded and the extra curricular. तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं they have also the part of the curriculum. तो करिकुलम बेसिकली हमारे पास वी कैन से वो करिकुलम जो है दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द activities, learning experiences that are the written or the unwritten that have been played within the school, that is called the curriculum. I mean that all these activities of the learning experiences will be come up and can be summed up in the form of the curriculum. Now we have to discuss about the characteristics of a curriculum. These are I enlisted the 11 characteristics of the curriculum. The number one is totality of activities. Number two, a means to an end. Number three is total school environment. Number 4 is total of experiences. Number 5 is mirror of irregular and co-curricular trends. Mirror of educational trends. Development of balanced personality. Process of learning. Living. Dynamic. Mirror of philosophy of life. And achievement of goals. ये हमारे पास 11 करेक्टरिस्टिक्स हैं। आइए इनको हम वन बाय वन जो है वो हर एक के मतलब जानने की कोशिश करते हैं। Totality of activities. In the above slides, we discussed that curriculum basically is sum of all the activities that is the played inside or outside the any educational institutions. So it's mean all the school activities which are used to promote the development of the people. All the activities which are responsible for the development of the social, emotional, and physical development of the child will be included in the curriculum. So that's why it refers to the totality of subject matter activities and experiences which constitute the pupil's school life. Different philosophies have a different opinion about this, but pragmatics have also included the entire range of the learning activities in the curriculum because according to them child learn by doing. तो pragmatics बेसिकली जो है वो लर्निंग बाई डूइंग के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जिससे जो है वो स्टूडेंट लर्न करता है वो तमाम की तमाम जो है वो करिकुलम के अंदर शामिल होनी चाहिए। नंबर 2 है अ मीन्स टू एन एंड। इससे मुराद ये है कि आप अपनी जो मंजिल है जहां पे आपने जाना है जो आपके जहन में है उसको हासिल करने का जरिया है। बट करिकुलम इज नॉट एंड इन इटसेल्फ, मतलब कि ये खुद कोई चीज नहीं है, लेकिन
ये एक मंजिल के हसूल का रास्ता है। आपको ज़रिया है, आपका वे आउट है, आपका रूट है, आपका तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप जो है वो अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, थ्रू विच यू कैन रीच एट योर डेस्टिनेशन। You can find out the way through the curriculum to reach at your destination। वो destination आपकी क्या है कि what kind of the learning you want to make sure। So therefore it is created as to achieve the aim of educational objectives as we already discussed above। Basically the curriculum have a goals, aims and objectives of education। So but that is the reason why different education suggest different kinds of curricula to conform to the aims and objectives ascribed to education। It follow that the curriculum will change the every change in the aims of education। सिंपली ये है कि अगर आप अपने जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स चेंज कर लेंगे, आपके मकासद चेंज हो जाएंगे, तो आपको अपना करिकुलम भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि करिकुलम आपके मकासद के हसूल का ज़रिया है, ये खुद मकसद नहीं है। ये जो करिकुलम खुद से मकसद नहीं है, लेकिन ये एक मकसद को हासिल करने का ज़रिया है, तरीक़ाकार है। तो इसलिए जब भी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करेंगे, तो आपका करिकुलम ऑटोमेटिकली आपको चेंज करना पड़ेगा। तीसरी बात हमारे पास है टोटल स्कूल एनवायरनमेंट। टोटल स्कूल एनवायरनमेंट से ये मुराद है कि जो भी करिकुलम आपका है, वो आपके स्कूल एनवायरनमेंट को चेंज करता है, आपके स्कूल के एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। जिस तरह का आपका करिकुलम होगा, वैसे ही आपको अपने स्कूल का एनवायरनमेंट जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। जो आप चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं, जिस तरह के आप लोगों को डेवलप करना चाह रहे हैं, जिस तरह की चेंज आप अपने बच्चों के अंदर लाना चाह रहे हैं, या आप यूँ कह लें कि आप जिस तरह की चीज़ें बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं और जिस तरह से सिखाना चाह रहे हैं, वो आपका करिकुलम आपको बता रहा है। तो आपके स्कूल का एनवायरनमेंट जो है वो उसी तरह का होगा जिस तरह का आपका करिकुलम है। तो बेसिकली जैसे हमने बताया कि करिकुलम हमारे पास रोड मैप है, गाइडलाइन है कि हम कैसे वो तमाम लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों के जो है वो प्ले करेंगे, किस तरह से बच्चों को उनको गुजारेंगे। हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, हमें एक रोड मैप फ्राहम करता है। तो वो रोड मैप हमें बताएगा कि हमारे स्कूल का जो इंटायर इन्वायरमेंट है, जो हमारा जो इंस्ट्रक्शनल क्लाइमेट होगा, इंस्ट्रक्शनल कल्चर होगा, एकेडमिक कल्चर होगा, जो हमारे पास लर्निंग एक्सपीरियंसेस का बच्चे का प्रोसेस होगा, वो क्या होगा, उसके लिए हमारा करिकुलम हमारे डिसाइड करेगा। तो सिंपली एंड फाइनली कि द करिकुलम आपका बताएगा कि आपके स्कूल का जो एंटायर क्लाइमेट है वो किस तरह का होगा। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। This refers to the total activities of the student। Total activity means बिकॉज हमने एक जो हमारा करिकुलम है, इसको आगे हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो आपका करिकुलम है वो सिर्फ स्कूल की हद तक नहीं है, वो स्कूल से बाहर भी है। क्योंकि आपका जो करिकुलम है वो आपकी सोसाइटी का आईना होता है। आपकी सोसाइटी जिस तरह का करिकुलम चाहती है, जिस तरह की एजुकेशन चाहती है, वैसा ही आपका करिकुलम होता है। तो इसलिए तो टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस से ये मुराद है कि वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम लर्निंग एक्टिविटी, वो तमाम लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो कि एक बच्चा स्कूल के अंदर परफॉर्म करता है, स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ को प्ले करता है, स्कूल के अंदर चीज़ों को सीखता है, जो उसकी लर्निंग की एक्टिविटीज़ जो हैं, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, जो स्कूल के अंदर हैं, और प्लस बाकी जो हैं वो आउट ऑफ द स्कूल हैं, सोसाइटी के अंदर हैं, पेरेंट्स के पास हैं, सिबलिंग्स के साथ हैं। वो तमाम जो एक्टिविटीज़ का मजमूआ है बुनियादी तौर पर,
वो करिकुलम है। ये करिकुलम की एक खासियत है कि वो तमाम एक्टिविटीज को होल्ड करता है, उसको एम्ब्रेलाइज करता है, यानी एक अम्ब्रेला है बेसिकली जो उन तमाम एक्टिविटीज को कवर कर रहा है। तो अब ये हमारे पास जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं दैट ऑल मे बी related to the development of the personality, social development also it is included in this, and also the physical development. The curriculum includes in not merely syllabus and books but also all those experiences and the relationship which he is going to form in his environment, with his relative, with his siblings, and with his neighbors, and with the society where he or she is living. Mirror of irregular and co-curricular trends. Curriculum forms the mirror of curricular and co-curricular trends, and it's able to reflect the curricular and co-curricular trends in our educational institutions. As I already mentioned in the start of this lecture, आपका जो करिकुलम है वो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी जिम्मेदार है। वो ये डिसाइड करता है कि आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैसी होनी चाहिए। हमारे एज अ मुस्लिम हमारी कम्युनिटी के अंदर हमारा क्या है कि हमारे स्कूल्स के अंदर हम सुबह जो है वो दुआ करवाते हैं, हम तलावत होती है, और इसी तरह से डिफरेंट जितने भी एजुकेशनल हमारे पास फंक्शंस होते हैं और उन तमाम के अंदर हम किस तरह का हमारा इन्वायरमेंट होता है। हमारी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ट्रेंड से जो मुराद है कि किन पैरामीटर्स के ऊपर वो हमारी जो है एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जैसे मैं सिंपली एक बात कहूँ कि हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं हम उसमें ट्रेंड्स में हमारे पास आपकी गेम्स भी आ जाएंगी, आपकी डिबेट्स भी आ जाएंगी, और इसी तरह से डिफरेंट जो हमारे पास कंपटीशन है वो भी आ जाएंगे। तो वो किस तरह के आपके पास हैं। तो फॉर एग्जांपल द कोर्स ऑफ स्टडी है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है, मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग है, टीचिंग एड्स हैं, एवेल्यूएशन टेक्निक्स एंड ऑल दीज आर द curricular activities, but what are the co-curricular, as I told you earlier. और करिकुलम की एक ख़ास बात ये होती है कि करिकुलम हमारे पास जितने भी हमारे पास एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं वो हमें बताता है कि हमारे एजुकेशनल ट्रेंड्स क्या हैं, उनका आईना होता है हमारे पास। जब हम अपना करिकुलम को देखते हैं तो हमें तमाम करिकुलम जो ट्रेंड्स है वो हमारे सामने रखता है। It deficits the total picture about the prevailing educational system, but the objectives behind the educational system highlighted through the series of experiences which are provided by the curriculum. करिकुलम की एक ख़ास बात ये भी है कि करिकुलम हमें इस बात में भी हमारी मदद करता है कि that curriculum, you can say a good curriculum will also helpful in the development of the balanced personality. The activities which are given in the curriculum that may be related to the physical, intellectual, emotional, social, economic, and aesthetic, and the cultural development play their role for the developing the balanced personality. It means that all it included, and the curriculum guide us about the all the required ingredients for the balanced personality, कि आपको एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं, हमें किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और किन एंगल्स पर हमें जो है वो उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। व्हाट शुड बी द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, what the ingredient should be included, and what sort of the skills we should have to teach to the student for the personality grooming and development. Number 8 is process of living. So curriculum is basically also guide us
about the way of living, way of interaction between the individuals and the society, and between the people who are living in the society. That may be a student and the teacher, teacher and the student, teacher and the society, student and the society, and which all these interaction which are taking place around in the environment, that is included in the process of living. तो सिंपली के करिकुलम की एक करेक्टरिस्टिक ये है, एक खसूसियत आप ये कह सकते हैं कि ये है कि वो हमें वे ऑफ लाइफ सिखाता है कि हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से लोगों के साथ अपने मेल जोल रखना है, हमारे इंटरेक्शन किस तरह के होने चाहिए, और हमारा जो डिफरेंट हमारी ये लिविंग एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, उसमें वो हमें गाइड करता है। द नंबर 9 इज डायनामिक। कि एक जो अच्छा करिकुलम होता है उसकी ये भी एक खसूसियत होती है कि वो डायनामिक होता है। डायनामिक से क्या मुराद है कि रिजिड नहीं होता है। ये नहीं होता कि एक करिकुलम हमने डेवलप किया है वो 2020 की तो जो है वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, लेकिन जैसे ही साल चेंज होता है तो जो रिक्वायरमेंट्स हमारी होती हैं चीज़ों की, उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि उसको वो 2021 की ज़रूरियात को जो है वो हमारी पूरी कर सके। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं साथ कि वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर जो एक स्टूडेंट है, लर्नर है, एक इंडिविजुअल है जिसके लिए वो बनाया गया है, उसकी ज़रूरियात और उसके इंटरेस्ट का भी उसके अंदर ख्याल नहीं किया गया। तो डायनामिक का मतलब ये है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उन तमाम चीज़ों की जो है वो उसका उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उन तमाम एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो उसको मैनेज किया जा सके, वक़्त के बदलते हुए तकाज़ों के साथ जो है वो उसको उसका ख़्याल रखा जाए, और जो स्टूडेंट है उसकी नीड्स और उसकी उसकी जो दिलचस्पियाँ हैं, उसकी जो ज़रूरियात है, उसके मुताबिक उसको डाला गया हो। नंबर 10 हमारे पास है कि मिरर ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। हर सोसाइटी की और हर जगह पर रहने वालों के कुछ ना कुछ फिलॉसफीज होती हैं, ख्यालात होते हैं, नज़रियात होते हैं। तो जो करिकुलम है ये उस सोसाइटी की जिन लोगों के लिए जब बनाया गया है, जिस जगह पे ये इम्प्लीमेंटेड है, जो उस जगह के करिकुलम उन तमाम लोगों की जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, जो उनकी थिंकिंग है, जो उनकी सोच है, और जो वो लोग जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसका ये अक्कासी करता है। करिकुलम हमें बताता है कि ये जिन लोगों ने ये बनाया है उनका फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है, वो क्या सोचती हैं, वो क्या करती हैं, वो क्या समझती हैं, वो चीज़ों को प्रोसीड कैसे करते हैं, उनके यहाँ ज़िंदगी को कैसे जो है वो चलना चाहिए। It depicts philosophy of life, democratic or autocratic way of life is reflected in the curriculum। इससे ये नहीं मुराद है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं, इसमें ज़िंदगी की तमाम एक्टिविटीज़ शामिल हैं। जैसे आपको जहाँ पर डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ से रिफ्लेक्टेड, इसका मतलब ये है कि आप जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं कि भाई अगर आपने अपना एक प्रेसिडेंट चुनना है, अपना प्राइम मिनिस्टर चुनना है, आपके पास क्या तरीक़ेकार है। आपने जो है वो अपने एक लोकल एरिया के अंदर एक निज़ाम बनाना है, वो किन किन बुनियादों पर आपसे खड़ा करेंगे, तो उसके लिए जो है वो प्रिंसिपल्स क्या होंगे, वो भी करिकुलम का हिस्सा है। करिकुलम आपको उन तमाम चीज़ों के अंदर गाइड करता है। नंबर 11 हमारे पास है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। करिकुलम हमारे पास शुरू में हमने ये बात की थी कि करिकुलम हम बनाते ही इसलिए हैं कि वो हमें जो है वो गाइड करता है कि हमने अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, कि हमने अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम अटेन कैसे करेंगे, हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हासिल करेंगे, इनकी अकम्पलिशमेंट जो है वो किस तरह से पॉसिबल होगी। तो
मे बी जैसे हमने अगर करिकुलम इज प्रिपेयर टू अचीव सम गेट्स गोल सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन विच आर सेट बाय द सोसाइटी। बुनियादी तौर पर जो करिकुलम के अंदर हमारे पास गोल्स एम्स ऑब्जेक्टिव मेंशन होते हैं वो सोसाइटी की तरफ से ही बेसिकली जो है वो दिए गए होते हैं, क्योंकि जो करिकुलम बनाते हैं वो लोग भी उसी सोसाइटी के साथ ही जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए ये करिकुलम हमें ये बताता है कि हमने उन गोल्स को और उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने कैसे हासिल करना है, उसके उसमें हमें गाइड करता है, हमें रोड मैप फ्राहम करता है, हमें गाइडलाइंस मिलती हैं, हमें वे आउट मिलता है, और वो हमें तरीके, हमें स्किल सिखाई जाती हैं। वो हमारी पर्सनैलिटी को, एक लर्नर की पर्सनैलिटी को, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप करता है कि वो उन तमाम चीज़ों को जो है वो हासिल कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर जो है वो जहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है कि हमने ये देखा है कि हमारे पास करिकुलम क्या है और करिकुलम की हमने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को देखा है। तो इसके इसके साथ ही मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मैंने आपको इसके साथ ही एक 40 डेफिनेशंस की और आप हैंडआउट्स आपको सेंड किए हैं, आप उनको देखें। किसी भी इशू की सूरत में जो है वो आप अपने टीचर से भी रब्ता कर सकते हैं और मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस एट द गूगल क्लासरूम एज वेल। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। खुदा हाफिज़।